Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Mr. PG Bhaviskar, I would like to welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics. Your chapter is linear equation into variable. So, friends, in a previous session, we have seen what in by solution of linear equation. लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसी तरह फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट linear equation graphically. That means how to draw the graph of linear equation into variable. तो linear equation into variable का ग्राफ किसी तरह ड्रॉ करना है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. We had obtained the solution of linear equation into variable algebraically. आप लोग सॉल्यूशन किसी तरह फाइंड आउट करना है linear equation का ये हम लोग पढ़ चुके, आप लोग जानते हैं. नाउ लेट अस लुक एट देयर geometrical representation. Geometrical representation means graphical representation. You know that each such equation has a infinitely many solution. हमें पता है, हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. तो ये सॉल्यूशन हम लोग किसी तरह फाइंड करना है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. तो हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हमें उसके पहले कम से कम 2-3 मिनिमम 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे. और सॉल्यूशन किसी तरह फाइंड करना है ये हमने देखा है. तो लेट अस वी विल सी यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल. So let x plus 2y is equal to 6 be a linear equation. x plus 2y is equal to 6 ये linear equation है और इसके solution हमने previous session में देखा था, solution find out किए थे already. Now again we will find out its solution first. तो solution find out करने के लिए क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें उसके मिनिमम 2 या 3 solution आवश्यक है. तो हम लोग पहले solution find out करते हैं. तो solution find out करने के लिए क्या करना होता है, first express the given equation y in terms of x. So we can express this equation x plus 2y is equal to 6 y in terms of x. इसको हम लोग y in terms of x में रिप्रेजेंट करेंगे. तो y in terms of x में रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका y वाला टर्म रखना है और अदर जो टर्म्स है वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका x ये जो है एडिशनल टर्म है तो वी हैव टू ट्रांसफर दिस x फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. ओके, तो दिस x बिकम व्हाट, it become minus on right side. So on left side your 2y as it, right side your 6 as it, and this x become minus x. So we get right side is 6 minus x. Now transfer this 2 coefficient of y from left side to right side, it is going on denominator. So we get y is equal to 6 minus x upon 2. We can denote it by equation number 2. Okay, now choose the suitable value of x, and after solving we get the value of y and then the value of x and y in order pair. In order pair value of x and y is called its solution. हमें पता है तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट वी विल पुट x इज इक्वल टू 0. इसी इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे. 0 पुट करने के बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है तो 6 माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया अपॉन 2 एज इट. What is 6 minus 0? It is 6 upon 2 and 6 upon 2 is 3. So we get y is equal to 3. So we get here first solution is 0, 3. तो 0, 3 एक ये दिया गया इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें मिल गया. In this way put x is equal to 2 again in equation 2. So it becomes y is equal to 6 minus x means 6 minus 2 divided by 2. 6 minus 2 is 4 upon 2 and 4 upon 2 is 2. So we get second solution. x यदि 2 है तो y आपको मिलता है 2. इसका मतलब 2 2 is the second solution of given equation 1. Correct. Now again put x is equal to 6. हम लोग यहाँ पे 4 solution find out करेंगे. तो x is equal to 6. 6 put किया तो 6 minus x यानी कि 6 minus 6 divided by 2. 6 minus 6 यानी कि 0 upon 2 and 0 upon 2 is 0. So we get value of y is here 0. So we get your third solution is 6 0.
तो थर्ड सोल्यूशन हमें मिल जाता है 60. ओके, नाउ अगेन फाइंड वन मोर सोल्यूशन 4. पुट x इज इक्वल टू 4. 4 पुट किया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, यानी कि 6 माइनस 4 अपॉन 2. ओके, 6 minus 4 means 2 upon 2 and 2 upon 2 means 1. So we get 4th solution is 4, 1. Now we can write all this solution in tabular form like this. सभी solution हम लोग tabular form में इसी तरह write करेंगे. पहले लाइन में x की वैल्यू, सेकंड में y की वैल्यू. x 0 था तो y आपका आया था 3. x2 पुट करने के बाद y भी 2 मिला था. x4 पुट किया, y आपको मिल गया 1. यदि हम लोग x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y वैल्यू मिलेगा 1. इसी तरह बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 3, सेकंड इज 2 2, थर्ड इज 4 1, 6 इज 6 0. इसी तरह बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. ओके, नाउ अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो नाउ प्लॉट दिस सॉल्यूशन. दैट मीन्स योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 3, सेकंड इज 2 2, 4 1, 6 0. ये जो पॉइंट है इसमें से कोई भी 4 पॉइंट या 2 भी ले सकते हैं, बिकॉज लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है. 2 से ज्यादा भी लिया तो नो प्रॉब्लम. ओके, तो प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. तो ये सभी पॉइंट हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करेंगे एंड जॉइंट ऑल दिस पॉइंट्स बाय अ लाइन. और वो लाइन से हम लोग उनमें से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके, तो वी विल प्लॉट हियर दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. तो दिस इज योर ग्राफ पेपर. योर फर्स्ट सॉल्यूशन हमने देखा था 0 3. तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3. तो आपका ये पॉइंट 0 3 है. सेकंड आपका 2 2 था, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 2. तो ये आपका 2 2. नेक्स्ट 4 1 और उसी तरह x कोऑर्डिनेट 6, y 0 यानी कि x एक्सिस के ऊपर. इसी तरह ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है. सो ड्रॉ द ग्राफ और ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस ऑल दिस सॉल्यूशन. सो वी गेट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. और हमें पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. और दिस इज अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. और इक्वेशन का नाम जो है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किए उसके एक साइड में इक्वेशन का नाम इसी तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे लिखना है. ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए ताकि हमें पता चले कि दिस इज ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. कभी कभी हम लोग सेम ग्राफ पेपर के ऊपर दो लाइन का भी ग्राफ निकाल सकते हैं. तो हमें पहचानना आसान होता है कि यदि इक्वेशन का नाम वहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इसलिए ये लिखना जरूर है. ओके, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. तो इसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ फ्रेंड्स सी हियर पिक एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन. ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हम लोग पिकअप करेंगे. नाउ सी हियर दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. यहाँ पे एक Q पॉइंट मैंने दर्शाया. दिस पॉइंट इज योर Q. नाउ टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ दिस पॉइंट Q. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट आपका 4 दिखाई दे रहा है और y कोऑर्डिनेट आपका जो है -1 है. इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट है 8 -1. आप लोग फिर से देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. यहाँ पे जो Q पॉइंट हमें लाइन के ऊपर पिकअप किया है यहाँ पे मैंने दर्शाया लाइक दिस. ओके, इसका x कोऑर्डिनेट हमें 8 दिखाई दे रहा है और y कोऑर्डिनेट आपका -1 है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 8 -1. ओके, सो x दिस इज पॉइंट ऑन द लाइन और ये पॉइंट कहाँ पे हो, लाइन के ऊपर है. नाउ पुट हियर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इक्वेशन, इन द LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन. LHS आपका है x प्लस 2y. ओके, x प्लस 2y. इसमें हम लोग x की जगह 8, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 8 है, y की जगह -1 पुट करते तो क्या होगा, x यानी कि 8 प्लस 2 इंटू वाई की जगह -1. ये क्या होगा आपका, दिस 8 एज इट. यहाँ पे 2 इंटू -1 बिकम -2 एंड दैट इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज योर RHS. ये आपका दिया गया इक्वेशन का क्या है, RHS है. इसका मतलब दिस LHS इज इक्वल टू RHS. यानी कि ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, it makes LHS equal to RHS. That means this value satisfied the equation x plus 2y is equal to 0.
यानी कि x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करते इसका मतलब दिस आर द सॉल्यूशन। दैट मीन्स 8 minus 1 is the solution of the equation x plus 2y is equal to 0। तो इससे क्या मतलब होता है कि जो पॉइंट ये ग्राफ के ऊपर है, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है, वो पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब द ग्राफ, द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द ग्राफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, दैट मीन्स पिक एनी पॉइंट इज दिस, देयरफॉर 8 minus 1 इज अ सॉल्यूशन। इसी तरह आप लोग कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर का पॉइंट पिकअप कीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए। पुट करने के बाद वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि वो उसका सॉल्यूशन है। तो पिक एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन ए बी एंड वेरीफाई वेदर इट इज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड द इक्वेशन और नॉट। और आप लोग चेक कीजिए, जैसा हमने 8 minus 1 के लिए चेक किया और वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उसी तरह ग्राफ पेपर के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लीजिए और वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, आप लोग इसी तरह चेक कीजिए। तो चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाइड ही करेगा। नाउ टेक एनी पॉइंट, अभी दूसरा कोई भी पॉइंट लीजिए जो ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं है। सपोज अभी ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पी पिकअप किया। सपोज दिस इज योर पॉइंट पी, ये पॉइंट पी मार्क किया है, पिकअप लिया है। तो पीक जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। सो अभी आपने ये जो पॉइंट पी पिकअप किया है 2 0, ओके, एंड दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन। और ये पॉइंट जो है दिस इज नॉट लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है उसके ऊपर है क्या, नहीं है। अभी चेक कीजिए ये जो है ये पॉइंट 2 1 इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है क्या नहीं, चेक कीजिए। यानी कि ये जो इक्वेशन आपका x प्लस 2y, इसकी आपकी ये LHS साइड है, ये x प्लस 2y है, इसमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या होता है, देखिए x मीन्स 2 प्लस 2 इंटू वाई मीन 0, 2 एज इट, प्लस 2 इंटू 0 0 एंड 2 प्लस 0 0, ये आपका 2 आ गया। लेकिन इस इक्वेशन का राइट साइड आपका क्या है, 6 है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 6। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नहीं है, सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है P20 डज नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ओके, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब करेक्ट समझ में आ गया। नाउ हमने ये टेक किया, तो ये पॉइंट जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका यूज हमें करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर है वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब दिस इज अ सॉल्यूशन। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसका मतलब वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन हमने निकाली है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सभी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ given linear equation is a solution of that equation. Okay, and the point which is not on the graph is not the solution of linear equation. ये इसका मतलब हो गया। ओके, तो हम लोग इसी तरह ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड इक्वेशन 1 लाइज ऑन द लाइन AB। इसका मतलब जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो सभी पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर होते हैं। ओके, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड इक्वेशन 1, जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर यानी कि लाइन AB के ऊपर होता है। करेक्ट, 1। सेकंड, एवरी पॉइंट AB ऑन AB, एवरी पॉइंट इन ब्रैकेट AB ऑन लाइन AB gives a solution x is equal to A and y is equal to B of equation 1। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, जनरल हम लोग AB पॉइंट बोलेंगे। सपोज ये AB पॉइंट
लाइन के ऊपर है, तो ये x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन contact me. Okay, now next third thing is any point which does not lies on the line. कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं, हमने देखा है प्रीवियस एग्जांपल ये कि पॉइंट P2 जो है वो ग्राफ के ऊपर नहीं, और वो पॉइंट जो है वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करते. तो एनी पॉइंट विच डज नॉट लाइज ऑन ए बी इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. इसका मतलब ये जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है तो ये उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. ओके, तो फिर से आप लोग थोड़ा रिमाइंड करना है. क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पहला देखा है हमने कि ये जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने निकाला, ये लाइन, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो उस लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं. और जो पॉइंट ये लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के अलावा कहीं पे भी यहाँ पे, तो वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते. ये ध्यान में रखना है. तो इसका मतलब सॉल्यूशन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन उस लाइन के ग्राफ के ऊपर होता है, यानी कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. ये आप लोग एग्जांपल सॉल्व करते समय याद रखना है. ओके, सो यू कैन, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. एवरी पॉइंट, इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है. ओके, सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन and every solution of the equation is a point on the line. and क्या, उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो सब सॉल्यूशन उस लाइन के ग्राफ के ऊपर होते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन. In fact, a linear equation in two variable is represented geometrically by line whose point makes up the collection of solution of the equation. क्या है, हर एक पॉइंट ग्राफ जो निकाला है हमने, वो ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो होता है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का कलेक्शन. एंड दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उस ग्राफ को बोलते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज इनफ टू प्लॉट अ पॉइंट करस्पॉन्ड टू टू सॉल्यूशन एंड जॉइन देम बाय लाइन. तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ पे सफिशिएंट है कि कोई भी दो सॉल्यूशन हम लोग प्लॉटिंग करना है और उसमें से जाने वाली लाइन निकालना है. बिकॉज लाइन नीड्स 2 पॉइंट्स. लाइन निकालने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है. 2 पॉइंट यदि, यानी कि 2 सॉल्यूशन यदि हम लोग करेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ग्राफ आपका करेक्ट होगा. यदि सपोज उसमें एक आधा गलत होगा तो योर ग्राफ विल बी रॉन्ग. सो इट इज सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट है 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो हाउएवर इट इज एडवाइजेबल, लेकिन 2 सही है, लेकिन एडवाइस क्या कर सकता हूं मैं, टू प्लॉट मोर देन 2 सच पॉइंट सो दैट यू कैन इमीडिएटली चेक द करेक्टनेस ऑफ द ग्राफ. इसलिए क्या करना है, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड करना है और वो जो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन है वो प्लॉटिंग करना है ताकि हमें उसमें करेक्टनेस पता चले. क्योंकि यदि हम लोग 3 पॉइंट प्लॉट किया, ये एक पॉइंट मिल गया आपको, ये दूसरा पॉइंट मिल गया और ये तीसरा पॉइंट है, ये यदि एक तीनों पॉइंट यदि सेम लाइन में नहीं है तो इसका मतलब समवेयर रॉन्ग. इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एक पॉइंट इधर आ गया, इसका मतलब एक तो ये तीनों में से कोई तो भी पॉइंट गलत है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं. इसलिए हमेशा 2 से ज़्यादा, 3 मिनिमम 3 तो सॉल्यूशन आप लोग फाइंड करना है और 3 पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है ताकि आपको करेक्टनेस मिल जाएगा. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए हम लोग हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट हम लोग 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और वो 3 सॉल्यूशन यानी कि 3 पॉइंट ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे. और यदि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन करेक्ट है. यदि वो 3 पॉइंट यदि सेम लाइन के ऊपर नहीं, इसका मतलब कोई तो भी पॉइंट गलत है. फिर से हम लोग करेक्ट चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करने के बाद आपका ग्राफ करेक्ट होगा. तो ये इसलिए आप लोग 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ हियर रिमार्क इज व्हाट, द रीजन दैट द डिग्री ऑफ
degree of polynomial equation x plus by plus c is equal to 0 is called linear equation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? linear equation. Okay, is that it is a geometrically representation is a straight line. और उसका geometrical representation क्या होता है? straight line होता है. तो इसका मतलब graph of linear equation is just straight line. linear equation का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. यदि आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो समवेयर रॉन्ग. ओके, हाँ. Now friends, we are going to study example based on this topic. So your exercise 4.3, your first example is draw the graph of each of the following equation into variable x plus y is equal to 4. तो x plus y is equal to 4 इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. तो गिवन इक्वेशन इज x plus y is equal to 4. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालने होंगे? 3. 2 भी निकाले तो चलता है लेकिन करेक्ट होना चाहिए, इसलिए 3 निकालना है. तो वी विल फाइंड हियर 3 सॉल्यूशन. तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्सप्रेस गिवन इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखना है, बाकी सब राइट साइड में ट्रांसफर करना है. तो ये आप लोग लेफ्ट साइड में ये y एज इट रखेंगे और ये x जो है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इट बिकम माइनस. So y is equal to this 4 as it, this x become minus x denoted by equation 1. Now we have to find here 3 solution. तो solution कैसे find out करते हैं? Choose the substitute the value of different value of x and we get a different value of y, and then value of in order pair x y is its solution. So first we choose here x is equal to 0. हम लोग x का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? y is equal to 4 minus x यानी कि 0. and 4 minus 0 is 4. So we get your first solution is 0, 4. x यदि 0 लेते तो y आपका मिलता है 4. करेक्ट. उसी तरह पुट x is equal to 2. x is equal to 2 पुट के इसमें तो क्या होगा? y is equal to 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. तो x यदि हम लोग 2 लेते हैं तो y आपको मिल जाता है 2. नाउ पुट x is equal to 4. x 4 पुट किया तो 4 minus x यानी कि 4 minus 4 that is equal to 0. x 4 लिया तो y आपको मिल जाता है 0. So we get here solution. Your first solution is 0, 4. Second is 2, 2. Third is 4, 3. तो हमें यहाँ पे 3 solution मिल गए. पहला आपका solution है 0, 4. Second solution आपका 2, 2. Third solution आपका 4, 3. Okay. Now plot these points or this solution on the graph paper and draw a line passing through these 3 points. And this is the graph of the given equation x plus y is equal to 4. Now we will plot this point on the graph paper. So this is your graph paper. इसके ऊपर पहला पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे 0, 4. x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4 है. So this is your first point 0, 4. Okay. Your second point is 2, 2. x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 2 और y कोऑर्डिनेट 2. So this point is your 2, 2. थर्ड इज योर 4, 0. x कोऑर्डिनेट आपका 4 था, y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x एक्सिस के ऊपर आएगा ये पॉइंट. दिस इज योर पॉइंट 4, 0. एंड नाउ दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स एंड दिस इज द लाइन. दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x plus y is equal to 4. और ये लाइन ड्रॉ करते समय याद रखना है कि ये जो पॉइंट हमने प्लॉटिंग किया है, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपका 0, 4 है, यहाँ पे आपका 4, 0 है. तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लाइन करेक्ट उसी पॉइंट में से पासिंग होना चाहिए. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट इधर है, ये हमने ऐसा सर्कल किया, ये दूसरा पॉइंट है, इसको ऐसा सर्कल किया, और हम लोग कैसे करते हैं, ये लाइन इसी तरह ड्रॉ करते हैं. तो ये रॉन्ग है. तो ये जो है आपका जो पॉइंट करेक्ट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट करेक्ट पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करना है. हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मारते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इसको सर्कल को टच करने वाला या सर्कल को कट करने वाला, इसी तरह हम लाइन ड्रॉ करते हैं. तो हमेशा क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट में से ही जाना चाहिए, करेक्ट पॉइंट में से ही ये लाइन ड्रॉ करना है ताकि आपका ग्राफ करेक्ट होगा. तो इसी तरह हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है. एंड दिस ग्राफ दिस इज अ ग्राफ. ओके, so this is a graph of given linear equation x plus y is equal to 4. तो इसी तरह हम लोग कोई भी linear equation का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now your second example is draw the graph of the following equation y is equal to 3x.
अभी ये y इज इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. ये y इज इक्वल टू 3x इज ऑलरेडी y इन टर्म्स ऑफ x, सो नो नीड टू अगेन रीराइट, कोई जरूरत नहीं. एज इट y इज इक्वल टू 3x, उसको इक्वेशन 1 हम लोग बोल देते, योर इक्वेशन 1. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. x की डिफरेंट वैल्यू पुट करो, y की डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी, एंड दीज आर द सॉल्यूशन. तो इसमें पहले व्हेन x 0 पुट करता है, x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 0. x 0 पुट किया तो y 0 मिल गया. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू x मीन्स 3 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. सो योर सेकंड सॉल्यूशन इज 1 3. Put x is equal to minus 1, so y is equal to 3 into x means 3 into minus 1, that is minus 3. So your third solution is minus 1 3. तो आसानी से ये सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ प्लॉट दिस पॉइंट, यानी कि दिस सॉल्यूशन, पहला आपका 0 0 है, सेकंड पॉइंट आपका 1 3 है, थर्ड आपका -1 -3 है. प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. तो आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर, ये ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, इसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स एक्सिस. एंड दिस वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. यहाँ पे ये दो लाइन इसी तरह निकालना है कि यहाँ पे एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करना चाहिए. ओके, तो ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइन दिखाना आसान होता है. नाउ टेक अ सुटेबल स्केल. यहाँ पे सुटेबल स्केल रहेगा ना, तो एग्जाम्पल आप जो पॉइंट है उसके अनुसार आप लोग स्केल अलग अलग ले सकते हैं. तो यहाँ पे स्केल ले आए तो ये आपका जो इंटरसेक्टिव पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, और उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0 होते हैं, राइट. बाद में एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 1 सेंटीमीटर के ऊपर इसी तरह पॉइंट मार्क करना है, और यहाँ पे स्केल ले आए 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. इसी तरह लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर दिखाना है. उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर इधर पॉजिटिव इंटीजर, नीचे निगेटिव इंटीजर लेके ये स्केल लेके दिखाना है. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. देन वी गेट दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी तरह इसको हम बोलते हैं, करेक्ट. प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर में हमने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. सो नाउ प्लॉट दिस पॉइंट. तो आपका पहला पॉइंट है 0 0. तो पहला पॉइंट 0 0 यानी कि ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर ये पहला पॉइंट आपका 0 0 मिल गया. सेकंड पॉइंट आपका 1 3, x 1 है, तो यहाँ पे x आपका 1 है, y आपका ये 3 है. तो ये x कोऑर्डिनेट से ये जो 1 है वहां से लाइन ड्रॉ करना है. ओके, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस को या पैरेलल टू y एक्सिस निकालना है. उसी तरह हाँ, x आपका 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x एक्सिस के ऊपर 1 से यहाँ पे लाइन निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस. और y कोऑर्डिनेट आपका 3 है, तो y एक्सिस के ऊपर 3 से ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. यहाँ पे जो दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट है, दिस इज योर 1 3. तो इसी तरह ये 1 3 पॉइंट प्लॉट किया. नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका -1 -3. तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 x एक्सिस से -1 से लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू y एक्सिस. और y कोऑर्डिनेट आपका -3 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर -3 से लाइन निकालना है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपका है -1 3. तो इसी तरह ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है. ओके, बाद में ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट. अभी लाइन निकाला है, देखिए फिगर में जो लाइन निकाला है, जो पॉइंट हमने करेक्ट ब्लैक डॉट यहाँ पे दिखा है वो करेक्ट पॉइंट है. तो वो करेक्ट जो डॉट ब्लैक पॉइंट है उसमें से जाने वाली लाइन निकालना है, करेक्ट उसमें से जाना चाहिए. केवल नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल को कट करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला या टच करने वाला लाइन निकालते हैं, तो वो गलत होता है. तो वो जो करेक्ट डॉट पॉइंट है ब्लैक, उससे जाने वाली दिस लाइन ड्रॉ करना है, स्केल का यूज इस्तेमाल करके ड्रॉ करना है. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ योर लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x. और ये जो है इक्वेशन, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किए, ये ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उस इक्वेशन का नाम लिखना है, ताकि हमें पता चले कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x. सो इन दिस वे दिस इज अ
graph of linear equation y is equal to 3x. Okay, now we will see next example. Give the equation of two lines. हमें यहाँ पे दो इक्वेशन लिखना है. गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, दो लाइन का इक्वेशन लिखना है थ्रू, कौन से दो लाइन, पासिंग थ्रू 2 14. ये 2 और 14 ये पॉइंट में से जाने वाली दो लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई. इस ये जो एक पॉइंट 2 14 है उसमें से कितने लाइन जा सकते हैं. मोर लाइन्स आर ड्रॉन. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर. ये सिंगल पॉइंट में से कितने लाइन जा सकते हैं एंड व्हाई, क्यों. अभी हमें ये एक पॉइंट दिया गया है 2 14. तो इस पॉइंट में से जाने वाली दो लाइन का इक्वेशन मिनिमम 2, बहुत सारी. हमें पता है कि एक पॉइंट में से हम लोग इनफाइनाइट मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट. ये जो सिंगल पॉइंट है उसमें से बहुत सारी लाइन जाती है, ये हमें पता है, करेक्ट. और दो पॉइंट में से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली 1 लाइन. ओके, बट सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइटली मेनी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइट मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. तो ये जो 1 पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास हो सकती है, करेक्ट. लेकिन हमें पहले उसके पहले कोई भी दो लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो ऐसे दो इक्वेशन लिखना है कि वो ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए. यानी कि ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 सेटिस्फाइड करने वाली कोई भी दो लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है. तो ऐसे लाइन लिखना है कि ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करे. तो ये दो पॉइंट से दिखाई दे रहा है आप लोगों को. ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं x आपका 2 है, y 14 है. इनका दोनों का जोड़ कितना होता है 16. 2 + 14 16. इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जोड़ 16 है. तो हम लोग इसका इक्वेशन x + y = 16. एक इक्वेशन आपको मिल गया. देखिए x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, y का वैल्यू 40. 2 + 14 16 आता है. तो ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाइड करता है. सो दिस इज अ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो ये एक लाइन हो गई. इसी तरह दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि इनका दोनों का डिफरेंस अभी देखिए. एक्स और वाई इनका डिफरेंस यदि 2 - 14 हम करते हैं तो कितना आता है आपका -12. 2 - 14 is -12. यानी कि x means x coordinate, -14 means y coordinate and is equal to -12. यानी कि x - y is equal to -12. दिस इज अनदर इक्वेशन. ये एक दूसरा इक्वेशन मिल गया. तो इसी तरह बहुत सारे इक्वेशन हम बोल सकते हैं. तो ये दो बन गए. यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या देखा है, लिखा है देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 2 14 सेटिस्फाइड. अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बना है 7x - y is equal to 0. ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं. देखिए 7x 7, x का वैल्यू 2 पुट किया यानी कि 7 × 2, 7 × x का वैल्यू 2 पुट किया. ओके, इसमें तो 7x यानी कि 7 × 2 - y यानी कि 14. कितना था 7 × 2 आपका 14 - 14 दैट इज इक्वल टू 0. तो आ गए 0. तो इसका मतलब ये 2 14 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. सो देयरफॉर दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो 7x - y is equal to 0 is a line passing through the point 2 14. तो ये एक इक्वेशन है. उसी तरह x - y + 12. देखिए इसमें x का वैल्यू 2 पुट कीजिए. x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 - y का वैल्यू 14 + 12 कितना आता है जोड़. ये 2 और 12 इनका जोड़ +14 और ये -14. इट बिकम्स व्हाट 0. तो आ गया इसका राइट साइड. सो इसका मतलब 2 14 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. That means x - y is equal +12 is equal to 0 is passing through this point. तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये दो, मैंने पहले दो अलग बताए थे और ये दो अलग आ गए. तो इसी तरह there are infinitely many line passing through this single point. So therefore 7x - y is equal to 0 and x - y + 12 is equal to 0 are the lines, two lines passing through the point 2 and 14. तो ये इक्वेशन हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं. बहुत सारे इक्वेशन हम बना सकते हैं. लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बोले, 2 बोले, इसलिए 2 ही इक्वेशन लिखना है. तो सुटेबल मैंने जो पहले बताया था कि इनका दोनों का जोड़ 16 होता है. तो हम लोग पहले एग्जाम्पल सिंपल x + y is equal to 16 ये भी बोल सकते हैं. इनका दोनों का डिफरेंस आपका -12 आता है यानी कि x - y is equal to -12. तो ये भी इक्वेशन आसान है. ये भी आसान है लेकिन ये आसान है.
इसी तरह कोई भी दो, ये तो हमने 4 बना दिए, तो इसी तरह बहुत सारी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग कोई भी 2 इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन लिखा है। ओके, आप अलग अलग, हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब आंसर अलग अलग, इसका मतलब किसी का गलत है ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन के अनुसार वो आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो these are the 2 lines passing through 2 and 14. Okay, as it is known that through one point infinite number of lines can passing through, therefore there are infinite lines such that passing through the given point, such a टाइप हो गया, सच दैट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, यानी कि गिवन पॉइंट में से इन्फिनिटी मेनी लाइन पास होती है, ये इसका रीजन। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ। ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है? ग्राफ के ऊपर है। किसके ऊपर? ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। आपका जो पॉइंट है 3 4, ये पॉइंट ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है। और हमने देखा है कोई भी पॉइंट यदि ग्राफ के ऊपर है तो वो पॉइंट उस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब 3 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, एंड ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट मींस दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। सेटिस्फाइड का मतलब if we put the value of x is equal to 3 and y is equal to 4, then left side और right side कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। so that means this point satisfied this equation। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट करना है, और वो जो अननोन लेटर है ये, उसका वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू फाइंड हियर। सो लीनियर इक्वेशन इज योर 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। इक्वेशन 1 से डिनोट कर दें। हमें दिया गया था कि 3 4 is lies on the graph of the equation 1। ये 3 4 जो है ये इक्वेशन 1 यानी कि 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इसके ऊपर है। ओके, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड इक्वेशन। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो सेटिस्फाइड करते हैं, इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो आपका इक्वेशन 1 था 3y यानी कि 3y का वैल्यू आपका 4 है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है एज इट इंटू एक्स मीन्स 3 प्लस 7। 3 इंटू 4 आपका 12 हो गया। 3 इंटू ए आपका 3a प्लस 7। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। ट्रांसफर दिस 7 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये जो 7 है इक्वेशन का राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस होगा। Your left side 12 as it, this 7 become minus 7 is equal to right side 3a. 12 minus 7 is equal to 5 is equal to 3a. Now transfer this 3 from right side to left side। 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा। So we get a is equal to 5 upon 3। So we get the value of a is 5 by 3। करेक्ट? तो वेरी इजी एग्जाम्पल है। इस टाइप का एग्जाम्पल आप लोग को MCQ में या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। और इजी है क्योंकि हमें दिया गया था कि ये जो पॉइंट आपका 3 4, दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। और हमने देखा है, आज ही हम पढ़ चुके हैं कि जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर है वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड का मतलब if we put the value of x and y in the given linear equation then left और right side equal होती है। तो उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन का x का वैल्यू और y का वैल्यू इक्वेशन में पुट करना है। पुट करके वो वहाँ पे जो भी अननोन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह हम लोग अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन contact me on my WhatsApp number 9420439784। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव